This is Indian. This is fucking your. Stop it! Stop! Hello. May I talk to your manager, please? He's not here. What's the manager's name? Christina. Christina. Okay, so I just wondering why the girl put in the middle finger to me when I was telling her just to be polite. I didn't Why? say anything to you. Oh no, my car have a video camera. Okay. Just then to how did you react it to me as well? Do you know that? Do you Okay, know that I'm we are asking struggling you. here? I just asking you to be polite. And we are That's- struggling here. that's too You much. don't even know how our mental peace is harassed here. Doesn't matter. What if it doesn't matter to you? Hold What's on. the matter? They pay for do your job, right? I just They are not asking, even paying us. The only thing what I asking this girl is to be polite. Did I say anything? She's Did I been say so anything? mean, and then she replies with just putting her middle finger. That's not Did I cool. said anything to you? That's not cool. May I talk to your manager, please? Did I said anything Okay, to you? so when I can find your manager? You can come tomorrow or maybe Stop day after recording me tomorrow. right Okay. now. Stop recording me right now. Okay, so you I'm- have no right to do that. Oh, look at this girl. Look at this girl. But you. Oh you my cannot god. record Why like she's that. acting like that? Why like she's doing all of Go this? for it. Go for it. So Who told why- you? Who gave why you the she- right to why record she- me like that? The thing Why is, she's you acting Did like someone that? give you the I just right? asking why she's acting like No, that. I'm saying I just that- asking for be May- polite. Did you ask The thing about is, you my can- permission? May I talk? May I Did you talk? ask about my permission May to I record talk? me? May I talk? Did Okay. you ask my The permission to only- record me? the Do on- you have that? Do you have that right Oh. to record me without my permission? Do you even have that? This is Indian. This is fucking your. Stop it! Stop blaming Indian people. You have no right to say anything about my community. अब प्रॉब्लम यही है कि यार आजकल हिसाब किताब ये बना हुआ है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी कोई आर्गुमेंट हो जाए, कोई बहसबाजी हो जाए, तो सबसे पहले बंदा ये देखता है कि भी इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, या फिर ये कहाँ से आया है, इसका स्किन का कलर क्या है, इसका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, वर्क परमिट पे है, पीआर है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो उसको लेके बतंगड़ बनाया जाता है बात का। अब इस केस में भी देख सकते हो वीडियो के अंदर वो जो कस्टमर है एंड में यही बोलती है कि भी दिस इज इंडियन। इसका कोई सेंस नहीं बनता। जो भी आर्गुमेंट चल रहा है, जो भी बहसबाजी चल रही है, उसके अंदर इंडियन होना, फिलिपिनो होना, इंग्लिश होना, चाइनीज, जापानीज होना कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन स्टिल उस लेडी ने एंड में यही बोला कि भी दिस इज इंडियन, क्योंकि आजकल चली दुनिया में यही रहा है, मार्केट के अंदर यही चल रहा है कि भाई ये इस पर्टिकुलर कंट्री से है या फिर ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, तो इससे एक्सपेक्टेड है कि भाई इसी तरीके से बिहेव करेगा। और जो मीडिया वाले हैं वो तो बैठे हुए हैं इस चीज़ को और ज़्यादा वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि ओ देखो इंडियन ने इस तरीके से बिहेव कर दिया, क्योंकि कनाडा के अंदर पॉलिटिक्स तो इसी हिसाब से चल रही है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हमें अपने एक्शंस थोड़े सोच समझ के लेने पड़ेंगे। चलो यार, बैकग्राउंड में जो भी बात हुई होगी हमें नहीं पता, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते कि भी कस्टमर ने क्या बोला होगा, एम्प्लॉय ने क्या बोला, उसको नहीं पता, हमें कोई डेटा नहीं है हमारे पास, तो उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन या डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो के अंदर जो भी बहसबाजी हो रही है उसके बेसिस पे थोड़ी डिस्कशन हो सकती है, और मैं एज अ थर्ड पर्सन बात करना चाहूँगा। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगा कि भाई वो इंडियन लड़की है या फिर वो एम्प्लॉय है टिम हॉर्टन्स पे, तो उसकी साइड ले या फिर कस्टमर की साइड ले। रैशनल होके एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि जो फूड इंडस्ट्री है, टिम हॉर्टन्स हो गया, मतलब फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है, टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग या फिर जो भी ये ड्राइव थ्रू वाले रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं फास्ट फूड वाले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर होता है। फटाफट से गाड़ियाँ आती है और वो निकालनी होती है। मेरा एक फ्रेंड मैकडॉनल्ड्स में काम करता था, वो बताता है कि जब भी कोई गाड़ी ऑर्डर प्लेस करती है या फिर ड्राइव थ्रू के अंदर एंटर करती है ना, तो उनका एक टारगेट होता है कि भाई इतने टाइम में ये गाड़ी निकल जानी चाहिए, कि भाई गाड़ी ने ऑर्डर प्लेस किया, उनको ऑर्डर दिया, पेमेंट वगैरह ली और वो निकल जानी चाहिए, मतलब 40 सेकंड, 30 सेकंड। उसके मैकडॉनल्ड्स में टारगेट होता था 30 सेकंड्स का, कभी 30 सेकंड के अंदर अंदर ड्राइव थ्रू से गाड़ी निकल जानी चाहिए। अगर नहीं निकली तो भाई बोलेंगे, मैनेजर बोलेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मीट नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है। तो इसके चलते मैनेजर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये चीज़ें फटाफट से होनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा हमेशा ये जल्दी करने की कोशिश करते हैं, फटाफट से पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो जो प्रेशर है ना वो बिल्डअप होता रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कभी कभी ऐसा होता है कि भी लॉन्ग डे होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं फॉर सम रीज़न,
रीज़न मे बी वीकेंड हो सकता है, या फिर जो टिम हॉर्टन्स है उसकी लोकेशन ऐसी हो सकती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से पास थ्रू करती हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑब्वियसली अंडर प्रेशर काम करेंगे और कभी ना कभी बंदा फूट ही जाता है। कोई बुरा दिन चल रहा होता है, बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है कि भाई जॉब की दिक्कत, मतलब जॉब की दिक्कत तो नहीं, फुल टाइम जॉब की दिक्कत है, नहीं मिल रही है, पीआर की टेंशन हो रखी है, वर्क परमिट की टेंशन हो रखी है, या फिर स्टूडेंट परमिट पे है, एग्जाम्स की टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन है, तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। अगर इसी चीज़ को हम वॉलमार्ट में काम करने से कंपेयर करें, या फिर गैस स्टेशन पे काम करने से कंपेयर करें, या फिर किसी नॉर्मल स्लो पेस्ड जगह से कंपेयर करें, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फास्ट फूड इंडस्ट्री में ब्रेक्स ज़्यादा नहीं मिलती हैं। वॉलमार्ट में अगर आपने काम किया आपको पता होगा, कम से कम आधे घंटे की एक बीच में ब्रेक मिलती है, फिर 15-15 मिनट की 2 ब्रेक्स मिलती हैं अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो। गैस स्टेशन की तो बहुत ही चिल जॉब होती है। मैंने 2 साल गैस स्टेशन पे एज ए स्टूडेंट काम किया था, तो बस बैठे रहना होता है, कस्टमर आएगा तो वो कैशियर वाला काम करेंगे और फिर दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। कोई टारगेट नहीं है कि अगर कस्टमर स्टोर के अंदर एंटर करता है, गैस उसने डलवाई है कि भाई इतनी देर में कस्टमर बाहर चला जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। और वीडियो को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं पूरे टिम हॉर्टन्स में, मतलब जहाँ तक वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा होते तो मे भी और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सामने आ जाते। सिर्फ 2 लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, तो प्रॉबली ये मैनेजमेंट की भी गलती हो सकती है कि भाई आपने ऐसे टिम हॉर्टन्स पे सिर्फ 2 लड़कियाँ रखी हुई हैं, अब वो दोनों ऑर्डर ले रही होंगी और अपना साइमल्टेनियसली ऑर्डर बना भी रही होंगी, या फिर एक लड़की ऑर्डर ले रही है, एक बना रही है, तो 4 गाड़ियां अगर ड्राइव थ्रू में खड़ी हो जाती हैं और सब पर रैप, ये 4 चीज़ें, कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं, तो बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि टारगेट होता है ना, बताया ना मैंने कि फटाफट से गाड़ी निकालो, तो इसकी वजह से प्रेशर बन जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई इतना ज़्यादा लड़की के ऊपर भड़कने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि भाई उसको बोली जा रहा है कि भाई लड़की की गलती है, उसने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया, उसकी तो जॉब है ऐसी। डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है कि भाई जॉब है, अभी वीडियो में उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन स्टिल हमें एक इंसानियत के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते ये भी देखना चाहिए कि भाई कोई बंदा जॉब कर रहा है, और भी टेंशनें हो सकती हैं लाइफ में। यार हम भी जॉब पे कितनी बार जाते हैं, कभी कभी मैनेजर से कोई ना कोई बातचीत हो जाती है, या फिर कभी कभी हम भी गुस्से में आ जाते हैं, फिर काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को उन शूज़ में रख के देखना चाहिए कि भाई लड़की की क्या प्रॉब्लम है, मे बी उसके माइंड में कोई और टेंशन चल रही हो, बैक होम कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। हम कोई रोबोट नहीं है कि भाई प्रोफेशनलिज्म ये वो या ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इंसान बन के भी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली यार, जब हम एक कस्टमर सर्विस वाली जॉब कर रहे होते हैं, मतलब एक ऐसी जब जॉब कर रहे होते हैं जिसमें हमारा काम कस्टमर फेसिंग होता है, मतलब हमें कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना होता है, तो उस केस में हमारी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना जॉब की, कि भाई आप एक काम कर रहे हो, उसमें ये पर्टिकुलर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि भाई कस्टमर के साथ हमें पोलाइटली बिहेव करना है। कस्टमर जिस तरीके से भी बात करे, मे बी वो थोड़ा सा रूड बात करे, लेकिन हमारी जॉब का पार्ट ये है, बहुत ही टॉप प्रायोरिटी वाला पार्ट ये है कि हमें कस्टमर से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना है, हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है कि भी कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, उसको हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर वही अपनी ड्यूटी अगर हम ढंग से नहीं निभाएंगे तो प्रॉबली हमारी जॉब को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हम अपनी जॉब ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं भी काफ़ी बार टिम हॉर्टन्स के ड्राइव थ्रू पे जाता हूँ, मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो चले ही जाते हैं कॉफ़ी रैप रूप लेने के लिए। तो लगा लो 10 में से 9 बार या फिर प्रॉबली 10 में से 10 बार ही मेरा एक्सपीरियंस कोई खास नहीं रहता। मतलब ये नहीं बोलना चाहूँगा कि बेकार एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब नॉर्मल की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है कि जब भी आप ड्राइव थ्रू के अंदर जाते हो, वो जो स्पीकर सा लगा होता है उस पर जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो एम्प्लॉय को ये बोलना चाहिए कि हाय, हाउ मे आई हेल्प यू। प्रॉबली ये स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल है, लेकिन वो जो नॉर्मल है ना, वो अब बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ साल पहले कनाडा के अंदर ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी कि आपसे पूछ रहे हैं कि भी आपका दिन कैसा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, मतलब वेदर बहुत अच्छा, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या है कि आप ड्राइव थ्रू में जाओ, स्पीकर पे बोलेंगे हाय, बस, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, हाय। ये भी नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर ऑर्डर, मतलब आप क्या खाना चाहोगे, आज क्या खाना चाहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, हाय। उसके बाद बोल दो भाई ये ऑर्डर है, फिर वहाँ पे जाओ तो विंडो पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे फेस पे कोई स्माइल नहीं होती, मतलब उनको गुस्सा होता है या परेशान से होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, मतलब अपने वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, तो थोड़ी सी वो चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और फिर काम ढंग से करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ऐसी जो बहसबाजी है
टिम हॉटन्स पे, मैकडोनल्ड्स पे, किसी गैस स्टेशन पे या कहीं ना कहीं होती रहती है। ये ऐसी जो वीडियोस हैं आए दिन आती मिलती रहेंगी आपको, कुछ ना कुछ होता रहेगा। नॉट अ बिग डील, बहसबाजी होगी, उसने कैमरा निकाल लिया, उसने फ़ोन निकाल लिया, एक दूसरे को रिकॉर्ड करना शुरू गए, मतलब वीडियो वायरल हो गई, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 महीने बाद आधे से ज़्यादा लोग, इनफैक्ट 99% लोग इस चीज़ को भूल भी जाएंगे और ये बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो एम्प्लॉय है ना, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब सब कमेंट कर दिया, लोगों ने गुस्सा दिखा दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया या फिर कुछ भी हो गया, बातचीत होगी इसके बारे में, सब ने अपना अपना ओपिनियन भी शेयर कर दिया, सब भूल गए। लेकिन जो एम्प्लॉय है उसको मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो ब्रांड है, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, वो तो अपनी इमेज मेंटेन करेगी ना। वो मे भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दे अपनी इमेज मार्केट के अंदर बढ़िया दिखाने के लिए कि देखो हमारे एम्प्लॉय ने गलत तरीके से बिहेव किया, हम कस्टमर फर्स्ट ऐसी कंपनी है, तो हमने अपने एम्प्लॉय को जो गलत तरीके से बिहेव कर रहा था उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि इस जॉब के लिए कोई बहुत ही स्पेशल स्किल चाहिए कि भाई वैसा बंदा मिलेगा नहीं। उसके ऊपर से अगर मैनेजर को कंप्लेंट किया जाए तो मैनेजर भी यही सीख रहा है कि भाई कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी, तो उस केस में मैनेजर भी आपको ही बोलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भी कनाडा के अंदर जो लॉ का हिसाब किताब है ना, काफ़ी सारे केसेस में सही नहीं है, बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। मतलब जो कस्टमर है ना, वो एम्प्लॉय के ऊपर इस केस में असॉल्ट का केस डाल सकता है या फिर किसी तरीके का केस डाल सकता है कि भाई फ़ोन स्नैच करने की कोशिश की या फिर कुछ भी एक्सट्रीम बोल सकता है, पुलिस के पास जाके या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कर सकता है। उस केस में एम्प्लॉय को, लड़की को ही प्रॉब्लम होगी जो प्रॉबेबली वर्क परमिट पे है या फिर PR पे है या फिर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो अपने पेपर वर्क में या फिर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और उस केस में कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं आने वाला कि भी हम सोचें हमारा मैनेजर हमारी हेल्प कर देगा, फिर मैनेजर का मैनेजर या फिर कोई कलीग हो गया, कोई टीम लीड हो गया, वो हेल्प कर देगा, या फिर वो जो ब्रांड है या कंपनी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। भाई साहब नहीं होता। हर कोई अपने कंज्यूमर को खुश करने में लगा हुआ है या फिर हर कोई अपने काम पे, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स खेलने में लगा हुआ है। हर किसी को प्रमोशन चाहिए या फिर LMIA वाला लेटर चाहिए या फिर रेफरेंस लेटर चाहिए, तो इसलिए उस केस में हम अकेले पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सोच समझ के एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। कस्टमर फेसिंग जॉब का नेचर ही यही है कि हमें थोड़ा सा, मतलब वो ना मोटी चमड़ी वाला होना पड़ता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करने वाला बनना पड़ता है, तभी इस जॉब में हम सर्वाइव कर पाएंगे या फिर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कस्टमर का तो कुछ नहीं जाने वाला, ब्रांड अपनी इमेज प्रोटेक्ट करेगी, जो मैनेजर है वो भी अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इवेंचुअली नुकसान जो है वो एम्प्लॉय का ही होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान से सोचनी चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ऐसी जॉब्स के अंदर मिनिमम वेज मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए काम करना पड़ता है, मतलब सुबह से शाम तक काम करी जा रहे हैं, सिर्फ खड़े हुए हैं। वॉलमार्ट में, टिम हॉटन्स में या फिर कोई और जॉब ले ले, वहाँ पे एटलीस्ट बैठने का टाइम मिलता है। इस जॉब के अंदर तो भाई साहब बैठने का टाइम भी नहीं मिलता और इधर उधर फटाफट भाग, ये पैटी गर्म हो रही है, वहाँ से फ्राइज जल गई हैं, उधर वो तेल खत्म हो गया है, वहाँ से वो डोनट खत्म हो गया है, कस्टमर मांग रहा है। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। लेकिन इस जॉब का नेचर ही यही है कि भाई साहब मोटी चमड़ी रखनी पड़ेगी और कोई बंदा बोल रहा है उसको सिंपली इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली नुकसान हमारा ही हो सकता है। और हाँ, अभी रिसेंटली टिम हॉटन्स से रिलेटेड एक कांड हुआ था, एक इंडियन मैनेजर ने कुछ कांड कर दिया था, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।